بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ آیت نمبر 103۔ ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا۔ اللہ رب العزت یہاں پر پچھلی قوموں کو ذکر کرنے کے بعد فرما رہے ہیں کہ ان سب کو ختم کر دیا، ان کو نیست و نابود کر دیا، اور اب ان کے بعد ہم نے کس کو بھیجا؟ ثم پھر بعثنا بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد، قوم عاد کے بعد، قوم سمود کے بعد، قوم لوط کے بعد، قوم ہود کے بعد کن کو بھیجا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون کی طرف بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ان کے بعد بھیجا بِآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، اپنی دلائل کے ساتھ، اپنی نبوت کے ساتھ، اپنی رسالت کے ساتھ، اِلیٰ فرعون فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ اور اس کے سرداروں کی طرف۔ یہ فرعون کے سردار بھی تو فرعون کی شے پر بڑے پہنچے ہوئے تھے نا، بڑی چلاکی تھی ان کے پاس اور بڑے بگڑے ہوئے تھے یہ بھی۔ دیکھیں پھر ذرا آج کے مسلمان بادشاہ کے جو وزیر ہیں نا وہ بھی بڑے پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ تو کافر لوگ تھے، تو ان کے وزیروں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے کہا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، فَظَلَمُوا بِهَا انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا۔ ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب بھیجا، تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ ظلم ہی کیا۔ فَظَلَمُوا بِهَا انہوں نے بھی ظلم کیا۔ فَانظُرْ پس دیکھ، کیفا کیسے تھا، عاقبۃ المفسدین انجام جھٹلانے والوں کا۔ یہاں پر مفسدین فساد مچانے والے بھی جھٹلانے والے ہیں، فسادی ہیں، پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں اور اپنی ہی ایک شریعت لاگو کر دیتے ہیں، جھوٹی، فساد بپا کرتے ہیں، غلط طریقہ چلاتے ہیں دنیا میں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کے بعد پھر سٹاپ نہیں کر دیا کہ اب تمہارے لیے کوئی رہبر نہیں آئے گا، کوئی رہنما نہیں آئے گا، وہ سلسلہ چلتا رہا۔ وہ ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، مستقل درمیان میں اور بھی نبی آئے، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کے لیے؟ لنا ہمارے لیے اللہ رب العزت نے بھیجے۔ اب اللہ رب العزت ان پیغمبروں کے لسٹ کے لاسٹ پہ ایک پیغمبر کا نام بتلاتے ہیں، ان کا نام ہے احمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ جیسے سب نبیوں نے اپنا ایک کام کیا ہے نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہی کام میرے نبی محمد نے بھی کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے امتی تم لوگ ہو۔ یہ کتاب تمہارے لیے، تمہارے سامنے پیچھے پیغمبروں کے بھی تذکرہ کرتی ہے، آگے والے آنے والے واقعات کا، حالات کا بھی، اس لیے کہ تم ان سے سبق سیکھو، تم بھی اسی کام کے لیے بنائے گئے ہو جس کام کے لیے اللہ نے ان کو بنایا تھا۔ اللہ کا ایک ہی مقصد ہے، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تم سب کو اللہ رب العزت نے، تم سب انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ تو آئیے اللہ کے پیغمبر جو سچی راہ ہدایت لے کر ہمارے پاس آئے ہیں، اسوہ حسنہ طریقہ حیات لے کر آئے ہیں، اس کو پکڑیے نا، اپنی مرضی مت چلائیے۔ جب تم ان کو ٹھکراؤ گے یقیناً ہر قدم پر ٹھوکر کھاؤ گے۔ لہٰذا اگر کامیابی چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کا دیا ہوا اسوہ حسنہ قبول کر لو اور اس پر چلنا شروع کر دو میری پیاری بہنا، ورنہ پہلی قوموں کے تذکرے آج ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے اگر وہ ہمارے لیے ایز اے لیسن ہی نہیں ہے، تو اگر اس میں سے ہمیں کوئی سبق ہی نہیں دیا جا رہا تو یہ کتاب میں ان کو بھرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ کتاب بڑے کام کی بنائی ہے اور اس میں مین چیزیں رکھی ہیں وہ جو ہمارے کام کے، یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے میسج بھیجا ہے۔
جیسے آج ہم ایک موبائل میں میسج کسی کو بھیجتے ہیں تو اسے لگتا ہے میرے پیارے کی طرف سے میسج آیا، کوئی خاص بات ہوگی، ساری لوگوں کی تفصیلیں تو نہیں نا اس میسج میں لکھی جاتی. یہ بھی یوں سمجھ لیجئے ایک ایک واقعہ، ایک ایک قصہ ہمارے کام کا ہے. یہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ تم میں سے نہ ہونا ورنہ تم اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے. اللہ کے نافرمان مت بننا. اللہ تعالیٰ کے نافرمان اللہ کو غصہ دلاتے ہیں، اللہ کو اچھے نہیں لگتے، اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کو راضی کرنا. اللہ تعالیٰ کا یہ بتلانا مقصود ہے. یہ قصے کس لیے بیان کیے کہ تمہیں سمجھ آ جائے، تم رائے راست پر آ جاؤ. وہ تجربے جو انہوں نے کیے اور تجربے کرنے کے بعد ہلاک ہوئے، ان تجربوں سے سیکھو، تم ہلاک نہ ہونا. آج ہمارے بڑے جو ہیں، بزرگ جو ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں ہوا سے سفید نہیں آئے، ہم نے دنیا دیکھی ہے. بیٹا ہم سے سیکھا کرو، ہم بتاتے ہیں تمہیں، لوگ نہیں بتائیں گے. یہ جدید دور کی ٹیکنالوجی نہیں بتائے گی. جب تک دھکے کھائے بندہ ایکسپیرینس نہ لے نہیں پتہ چلتا. تو والدین بڑے پیار کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ایکسپیرینس تم اپنے کام لے آؤ. اللہ بھی کہہ رہے ہیں تمہارے ہر عزیز و اقارب سے زیادہ پیار تو مجھے ہے نا، محبت تو مجھے ہے نا. پہلی قوموں کے یہ ایکسپیرینس، تجربے، ان سے سیکھو، ان کو کام میں لاؤ. تم بھی وہ تجربے نہ کرنا جو انہوں نے کیے اور تجربہ کرتے کرتے اپنی دنیا آخرت ختم ہو گئی. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور موسیٰ کی قوم فرعون کو دیکھا تم نے کیا کیا، اس کے سرداروں نے کیا کیا. اللہ رب العزت نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا نا، تو ابھی یہ جب اللہ نے ارادہ فرمایا اس کو پیدا کرنے کا، تو ایک عام گھرانے میں پیدا فرمایا اور وہ نیک گھرانہ تھا، ان میں پیدا فرمایا. اور وہ بنی اسرائیل جس میں جد نسلوں پیغمبروں کی آئی تھی ان میں پیدا کیا. یہ جو فرعونی تھے ان میں کوئی پیغمبر نہیں پیدا ہوا تھا، اور یہ بڑے ظالم تھے، اور یہ بہت بادشاہ بننے کے. آج بھی جس میں تکبر ہے نا، وہ کہتے ہیں میں بڑا ہوں، سارے میرے انڈر ہو جائیں. یہی تو تکبر ہے نا. تکبر نہیں کرتے، عاجزی اختیار کریں. انہوں نے تکبر کیا، انہوں نے بنی اسرائیل کو پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، ان کے اوپر سردار بن کے بیٹھ گئے، کام کرواتے، ان کو انہوں نے اپنا مزدور طبقہ بنا لیا ہوا تھا. اب اللہ نے چاہا تو ان میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. نجومیوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فرعون تیری بادشاہت خطرے میں آ گئی ہے. اس کو پتا چلا کہ کیسے خطرے میں آئی ہے. خطرہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا، وہ تیری سلطنت چھین لے گا، وہ اللہ کا سچا نبی ہوگا، وہ سچی راہ دکھائے گا. اب اس نے بنی اسرائیل پہ تشدد شروع کر دیا. کہتا ہے میں اس قوم کے اندر بیٹے کا بھی نہیں پیدا ہونے دوں گا تو جو میری بادشاہی چھینے. اس نے ان کے لڑکوں کو مارنا شروع کر دیا. لڑکا ہی ہونا تھا وہ بھی، اس لیے ان کے لڑکے مارنا شروع کر دیے اور لڑکیاں چھوڑی جائیں. اب پھر بھی اللہ جسے چاہتا ہے نا وہ ہو کے رہتا ہے. ایسے ماحول میں بھی اللہ نے چاہا تو موسیٰ بچ گئے. موسیٰ کی ماں نے موسیٰ کو جنم دیا، موسیٰ علیہ السلام کو. اور یہ بات فرعون کے لشکر فوجیوں کو پتہ چل گئی اور وہ آ گئے چیک کرنے کے لیے، بچہ لینے کے لیے آ گئے. ماں کا دل نہ کرے، ماں اس کو بھگائے کہاں، اس کو میں چھپاؤں. چھپانے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی. لگ رہا تھا فوجی کہیں نہیں چھوڑیں گے. تو روٹیوں کے لیے نا تندور جھونک کے بیٹھی تھی. تندور میں روٹیاں مائیں بہنیں لگاتی ہیں، پتہ ہے نا کیسے جھونکا جاتا ہے. آگ جلائی جاتی ہے اس میں، اور وہ بھی شدید کے یہ تندوری سرخ ہو جائے، روٹی کے قابل ہو جائے، ایسے آگ جلی ہوئی ہے. اب اسے کوئی جگہ نہیں ملی، کہتی ہے پکڑا بیٹے کو اس کے اندر ڈال دیا. دیکھیں اللہ چاہے تو ابراہیم کی آگ گلزار کر دے، اگر اللہ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کے تندور کو ٹھنڈا کر دے. وہ آگ جل رہی تھی. انہوں نے لشکر والوں نے ایک ایک چیز دیکھی، فوجیوں نے، کہ کہاں بیٹا ہے. نہیں ملا. آگ میں ہی نہیں انہوں نے دیکھا، کیونکہ ان کی عقل یہ کام کرتی تھی کہ آگ میں نہیں ہوگا. ان کا تو اللہ پر یقین ہی نہیں تھا کہ اللہ چاہے تو اس کو آگ میں بھی ہو سکتا بٹھایا ہو. نہیں دیکھا آگ میں، چلے گئے.
माँ ने पीछे से भाग के गई, देखा तो बेटा खेल रहा है। सुभान अल्लाह। वहां से निकाला, संदूकचा बनवाया लकड़ी का, अल्लाह ने दिल में डाला। कुरान कहता है अल्लाह ने उसके दिल में डाला कि इसको ना दरिया में बहा दो। उसने ने एक संदूक लकड़ी का बनवाया जिसमें ऊपर सुराख बनाए, फिर उसको बच्चे को उसके अंदर डाला, दरिया में डाल दिया। बेटी सफूरा को कहती है, माँ बेटी पीछे पीछे जाना, देखना हमारे बच्चे का अंत क्या होता है, एंड क्या होता है, कहाँ पे पहुंचता है, कौन इसको पकड़ता है, कहाँ जाता है, इसका क्या बनता है, बेटा देख के आना। बेटी थोड़ा दूर रह के गौर से देखती जा रही है, पीछे पीछे जा रही है। वो संदूक फिरौन के महल को जा लगा। उसके महल के साथ उसका बगीचा था, उसमें फिरौन की बेटी खेल रही थी, अपनी सहेलियों के साथ एंजॉयमेंट कर रही थी। तो खुद फिरौन भी वहां हो, चाहे वल्लाहु आलम कैसे भी कि वो उन्होंने ना, बाज कहते हैं कि उनकी बीवी थी, आसिया थी गालिबन। तो वल्लाहु आलम इनके फैमिली में से मेंबर था, जो भी था, उन्होंने पकड़ा और फिरौन के पास ले गए। आसिया कहती है, माशाल्लाह बच्चा कितना खूबसूरत है, औलाद नहीं है फिरौन, हम इसको बच्चा बना लेते हैं। अल्लाह ने मत मार दी फिरौन की। ये ज़हन में ही ना आया कि ये तो इसराइली बच्चा होगा, जिनके मैं बच्चे मार रहा हूँ उन्होंने बचाने के लिए फेंका होगा, तो यही ना मेरी बादशाह छीन ले। कहता चल ठीक है, औलाद की मार ऐसी होती है। जब बच्चे को रख लिया ना, तो एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे ऐसे करके उसकी दाढ़ी को पकड़ रहे हैं। बच्चा ऐसे बाप से खेलता है, दाढ़ी को पकड़, कहता है गुस्से से, यही वो बच्चा है जो मेरी बादशाही खींचेगा, ये मेरी दाढ़ी पकड़ रहा है। वो आसिया बहुत कहे, नहीं बच्चे को क्या पता है, कहता नहीं ये बच्चा, इसको पता है, ये गालिबन इसीलिए ऐसे करे। उन्होंने कहा अगर आपको लगता है ना, तो आप एक प्लेट में कोयले रख दें और एक प्लेट में हीरे जवाहरात रख दें। बच्चा है ना, अकल का कच्चा है, देखते हैं कि किसको पकड़ता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पकड़ने लगे, वो हीरों को पकड़ने हीरों को ही लगे थे। अल्लाह ने फरिश्ते को कहा, इसका हाथ मूसा का उठा के जवाहरात से आग की तरफ ले जा। सुभान अल्लाह। वो वहां से हाथ उठा के तो आग पे डाला, और वैसे ही वो गरम गरम आग कोयला पकड़ा और मुंह में डाल दिया। बच्चा तो ऐसे करता जो चीज पकड़े मुंह में डाल दी। तो कहती है देखा कहा था ना, उसकी मुंह जला दिया तूने, कहा था कि ये नहीं है वो बच्चा, देखा उसने आग पकड़ लिया, बच्चे को क्या पता होता है। तो इसलिए वो जुबान से थथलाते थे। अब बच्चा फिरौन के घर जवान हुआ, बड़ा हुआ, एक नेचर और दिल में अल्लाह पाक ने एक बात रख दी थी कि हक क्या है, हक की तरफदारी करते थे वो, उनको हक परस्ती उनके दिल में थी। अभी पता नहीं है अल्लाह का सही मानों में सही रास्ता, अल्लाह ने अभी नबूवत नहीं ना दी थी। एक दिन क्या हुआ, बाहर निकले इसराइली और एक फिरौनी, दोनों आपस में झगड़ रहे थे। तो कहने लगा क्या मसला है। इसराइली कहने लगा ये फिरौनी, इसने मेरे ऊपर जुल्म किया। तो वो वाकई जुल्म जो करते थे, इसलिए इन्होंने ज्यादा देर नहीं लगाई सोचने में, तो आन उनको एक लगाई, उसको लगाई ना तो वो वहीं पे मर गया। अल्लाह की तरफ से वो उसकी आ गई थी, मौत आ चुकी थी, वो मर गया और किसी और ने नहीं देखा। अगले दिन फिर निकले ना, तो वही आदमी किसी और के साथ झगड़ रहा है। कहते हैं मूसा देखो ये मुझे मार गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आया कि क्या तू ही सही है, कल भी तेरी वजह से एक आदमी मारा गया और आज तू एक अगले बंदे के साथ तू फिर झगड़ा करके खड़ा हुआ है, तू ही ठीक है। उसे गुस्से से बोले ना, तो कहता आज मुझे ना मार देना। और ये बात कोई और भी सुन रहा था, उन्हें लगा कल वाला बंदा तो मूसा नहीं मारा है। वो बात पहुंच गई फिरौन के पास, सरदारों के पास। वहां पे एक हमायती भी था, हक के हमायती भी हुआ करते हैं हर दौर में हर जगह। तो वहां पे क्या देखते हैं कि एक बंदा बैठा हुआ है, उसने बातें सुन ली, वो दौड़ा मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। मूसा अलैहिस्सलाम को आके कहता है यार यहाँ से निकल जा, अब तेरी खैर नहीं, बच जा, यहाँ से दौड़ जा। उन्होंने जूता भी पहनने के लिए घर नहीं गए, कुछ पकड़ा नहीं है, वहीं से निकल गए जंगलों की तरफ, वादियों की तरफ। वहां से होते हुए मदियन शहर को निकल गए, जहां पे हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम नबी थे। वहां पे जाके देखा क्या, अभी किनारे पर हैं, अंदर नहीं दाखिल हुए। तो वहां लोग अपने जानवरों मवेशियों को पानी पिला रहे थे।
तो वहां देखते हैं कि बाकी सब लड़के हैं पर 2 लड़कियां अपने जानवर लेकर बैठी हुई हैं और उनको कोई आगे ही नहीं आने दे रहा। सब वो आप ही खुद ब खुद पानी पिलाई जा रहे हैं, पीछे हुए जा रहे हैं। और जब एंड हुई ना तो उन्होंने वो पत्थर उठाया और कुएं को बंद करके चले गए, लड़कियों को पानी नहीं पिलाने दिया। वो लड़कियां बेचारी उठी, उन्होंने अपनी भेड़ बकरियां वहां पे छोड़ी जहां पे उनके जानवरों के पाँव लगे थे, कुछ पानी गिरा था, उन्होंने ऐसे चाट चूट के पानी थोड़ी सी नमी ली। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के पैगंबर थे, बड़ा तरस आया, रहम आया, ये कैसे लोग हैं, सब लड़के, ये लड़कियां इन पर जुल्म कर रहे हैं, इनको पानी नहीं पिलाने दिया, ऊपर से मुंह बंद करके चले गए हैं। 40 बंदे उस पत्थर को उठाते थे जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अकेले ने उठाया। सुभान अल्लाह। पत्थर पीछे किया, पानी पिला दिया, बकरियां फूल हो गई, कुख निकल आए और पेट भर पानी पिया, पता नहीं कब से आज। बेटियों ने, उन लड़कियों ने बकरियां आगे लगाई, चली गईं। पैगंबर हया वाला होता है, एक दफा भी नहीं कहा कि मैंने रोटी खानी है, मैं मुसाफिर हूँ, भूखा हूँ। सवाल करने से पैगंबर कतराते हैं। समझ लीजिए जो जितना ज्यादा सवाल करता है वो उतना अल्लाह से दूर है, और जितना वो सवाल से बचता है वो अल्लाह से करीब है। पैगंबर सवाल नहीं करते, वहां से हट के आके बैठे, अल्लाह से तार मिलाई, कहते हैं अल्लाह जी भूख लगी है, रोटी का बंदोबस्त कर दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू की तरफ से ऐलान आता है, मेरे नबी तूने मुझसे मांगा है, मैं ऐसी जात हूँ जो थोड़ा मांगो तो बहुता देती हूँ। तूने रोटी मांगी तो मैंने रोटी वाली का भी बंदोबस्त कर दिया। सुभान अल्लाह। उतने में वो दोनों बेटियां, वो शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी, वो वापस गई, बाप नबीना हो चुके थे। देखिए अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत के करिश्मे। अल्लाह ने मूसा को इसीलिए तो वहां पहुंचा दिया था। हर चीज अपनी सही और असल जगह पे पहुंचती है मेरी बहनों, और अल्लाह के हुक्म और इरादे से पहुंचती है। अब जब उन्होंने बकरियां घर गई तो देखे बेटियों का बाप है, ऐसे बकरियां आंखें नहीं है, बकरियों पे हाथ मार मार के देख रहा है, पुत्र आज बकरियां बहुत ही रजियां ने, खैर देगी, कभी इतना इनका पेट नहीं भरा हुआ, कुख नहीं निकले हुए, आज कुख निकले हुए हैं, कैसे पानी पिलाया। आज हम अपने बेटों से सवाल नहीं करते, बेटियों से सवाल नहीं करते, हराम आए हलाल आए बस आए, पूछते ही नहीं है, बस बच्चे खुश तो हम खुश, ठीक है। नहीं, नजर रखा करें, ये नजर वालिदैन की अमानत है, इसको अदा किया करें। कहा अब्बा जी आज की नजर ऐसी होनी चाहिए। इसमें ना हर चीज में लेसन है हमारे लिए। ये मैंने सबसे पहले कहा, ये अल्लाह ने किससे क्यों बयान किए, इसमें हमारे लिए सबक है, भाई तुम ये करो। अब वो कहा बेटा क्या किस्सा, क्या माजरा क्या। अब्बा जी उन्होंने तो वैसा ही किया जैसे वो डेली करते हैं। अब वहां पे कोई एक अल्लाह का बंदा था, उसने उनके जाने के बाद पत्थर उठाया और हमारी बकरियों को सबको पानी पिलाया, ये उसकी मेहरबानी है। कहा सुभान अल्लाह। कहते हैं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम के ऐसा कौन नेक बंदा है जो शुएब की बेटियों को पानी पिलाता है। कहते जाओ उसे लेकर आओ, हाँ तुम्हारा अब्बा उसको मजदूरी देगा उसके काम की, उसने काम किया है। एहसान मत लेना, ऐसा ना हो कि आज के इस एहसान के बदले में कल कोई और वो चाहे, नहीं, जो उसकी मेहनत बनती मैं उसे दूंगा। अब नहीं ना पता था कि वो भी पैगंबर है। अब वो गई, दोनों बहनें में से एक बहन गई, उसने पर्दा किया हुआ है। अल्लाह के कुरान ने बड़े प्यारे अंदाज में बात की कि उसने पर्दा किया हुआ है और वो जंगलों में जा रही है। वहां पे जंगल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम डेरा जमाए बैठे हैं। जाके कहा भाई मेरे अब्बू जी बुला रहे हैं। अब यहाँ पे चुप हो जाती तो वो सारे रास्ते सोचते पता नहीं इसके अब्बू ने मुझे क्या कहना है, इसने क्या कहा होगा। 100 बसवी से आते। बेटी बड़ी समझदार थी, कहती है मेरे अब्बू जी बुला रहे हैं और आपको आपके काम की मजदूरी देना चाहते हैं। सोच वहीं पे बंद होगी, मजदूरी मिलेगी रोटी खाएंगे। सोच बदल गई, सोच को सीधा रखें, बात को कौलन सदीदा, सीधी और सच्ची बात करें, बातों में झोल ना रखें, माहौल खराब हो जाता है। अब क्या हुआ कि उनके पीछे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम चल रहे थे और वो आगे, कि उसको पता था ना घर का,
हवा चली और कपड़े उड़ते हैं ना, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी तो हया वाले थे, बीबी हया वाली है, पर्दा किया हुआ है। कहते हैं आप पीछे चली जाए, मैं आगे चलता हूँ। अगर रास्ता कहीं इधर उधर का हो ना तो कंकरी पकड़ लें, आप उधर को फेंक दीजिएगा, मैं उधर को चल पड़ूंगा। ये नहीं कहा कि तुम बताती जाना पीछे हो जाओ, आवाज का भी नहीं कहा, पत्थरी फेंक देना मैं उधर को हो जाऊंगा। जब घर लेके पहुंचे तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को शुआइब अलैहिस्सलाम ने देखा तो इन्होंने एक दूसरे को ऐसे समझा जैसे सगे भाई हैं। मोहब्बत पैगंबरों से होती है, जो जैसा होता है उसे वैसा बंदा बड़ा ही पसंद आता है। ऐसे मिले, प्यार मोहब्बत से मिले, बैठे, बातें की, और आखिर में पता क्या चला कि उसका भी तो कोई नहीं है, तो इसका बेटा कोई नहीं है, बेटा बना लिया, घर पे रख लिया। वो उनकी बकरियां चराते रहे तकरीबन 12 साल। उसके बाद उन्होंने अपनी एक बेटी की शादी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से की और कहा अब चले जाओ, अपने घर चले जाओ, अपने इलाके में चले जाओ, एरिया में चले जाओ। वहां से निकले तो रास्ते में एक आग चमकती नजर आई। अपनी बीवी से कहते आप यहाँ रुके, मैं आग लेकर आता हूँ, सर्दी बहुत है, ताप लेंगे, सेक लेंगे। जब वहां पहुंचे तो वो आग नहीं थी, वो तो अल्लाह की तरफ से एक रोशनी थी जो जल रही थी। वो बड़ी मुकद्दस जगह थी। अल्लाह ने कहा अपने जूते उतार के मूसा आगे आ जा। अल्लाह अकबर। वहां पर मौजूदे देखे, एक दरख्त से आवाज निकलती है, अना रब्बुकुम, मैं तेरा रब हूँ, अनल्लाहु, मैं अल्लाह हूँ, और तुम्हें हुक्म देता हूं कि फिरौन की तरफ चला जा और उसकी इस्लाह कर। अल्लाह ने नबूवत अता कर दी। वहां पे अज़दहा अल्लाह ने दिखाया, एज ए मोजज़ा देख के घबरा गए, भागे। पीछे से अल्लाह ने आवाज दी, ये तेरे लिए खतरे की घंटी नहीं है, मत भाग, डर नहीं, तेरे लिए तो ये मदद है, ये तेरे लिए तो एक असला है जिसको लेके जाएगा तू मूसा फिरौन की तरफ। फिर वहां से मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी बनकर फिरौन की तरफ आए और आकर के उनको पूरी तबलीग की, उनको एक रब की तरफ बुलाया, उनको मुंह तोड़ ऐसी तकरीर बयान की, सब लाजवाब हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम की बातों में इतना दम था कि कोई बात ना कर सका। तो फिरौन ने पता है क्या बात की, कहता है चलिए ऐसा करते हैं कि मुकाबला हो जाए, तुम जादूगर लगते हो, मैं भी जादूगर इकट्ठे कर लेता हूं, देखते हैं कौन जीतता है। अगर तुम जीते तो तुझे मानेंगे, मैं जीतूं तो मुझे मानोगे। ठीक है जी। अब ऐलान हुआ पूरे इलाके में, मुल्क भर में जो जो बड़ा जादूगर आए फिरौन की हेल्प करे, फिरौन उसे इनामात देगा। बड़े बड़े जादूगर आ गए, एक तरफ जादूगर इकट्ठे हो गए, एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम। कहते हैं कि तुम पहले फेंको। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम पहले फेंको, यानी अपना जादू तुम पहले दिखाओ। उन्होंने रस्सियां फेंकी और वो सांप बन गई। वो जो देख रहे थे सारे लोग वहां पे इकट्ठे हो गए, उन सबको लगा कि सांप ही सांप हो गए। वो देखने वालों की नजर में, क्योंकि वो तो जादू था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आसा एक लकड़ी थी, डिंगी सी प्यारी सी, उनको ऐसे फेंका तो वो बड़ा सांप बन गया और वो सांप उन सारी सपनियों को खा गया, छोटे छोटे सांपों को। वो जादूगर कहने लगे, वो जादूगर थे जो सजदे में गिर गए। कहते हैं ये जादूगर नहीं है, ये अल्लाह का सच्चा पैगंबर है। हम इस मुल्क के बड़े जादूगर हैं, तो उसके सांपों को बआसानी खा गया है वो, और ये हम जादूगर हैं, हमें पता है ये जादू नहीं है। तो फिरौन ने तब कहा था तुम ना असल में सारे मिले हुए हो, सारे ही जादूगर हो और तुम मूसा की हेल्प कर रहे हो, तुम छोटे हो और वो तुम्हारा बड़ा है, तो मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। तुम्हारे मुखालिफ हाथ पांव काटूंगा, अगर दाएं हाथ काटे हैं तो दायां हाथ काटा है तो बायां पांव काट दूंगा, तुम्हें सजा दूंगा, नोच लूंगा, तुम्हें तकलीफ दूंगा। कहते हैं हमें काफी है हमारा रब, तू जो करना है कर। अल्लाह अकबर। उसकी तकलीफों से, वो उसकी धमकियों से नहीं डरे, जन्नत हासिल कर ले। तकलीफें तो मिली ना, दीन में तकलीफें तो आई ना, और इस बात ने मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत को बड़ी तकवीयत दी। दीन आम होने लगा, फैलने लगा। अल्लाह अकबर। देखो दिलों में ईमान जा रहा है, पर फिरौन के दिल में नहीं गया, उसके सरदार नहीं माने, वो मजीद जुल्म करने लगे। क्यों जुल्म कर रहे थे? क्योंकि वो उस वक्त
अमीर थे, बादशाह थे, उनको गुलाम समझा हुआ था। अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा अपनी कौम को लेके यहाँ से निकल जा। वहाँ से निकले, रात के समय सबको जाके इकट्ठा किया, मशवरा किया सबसे कि इस टाइम हमने निकल पड़ना है। वो निकले तो फिर पीछे से फिरौन को भी किसी ने इतला दे दी कि तुम लोग भागो, उनका पीछा करो। वो चले गए, ये लश्कर लेके घोड़ों पर, पता नहीं क्या क्या इनके पास थे, वो बेचारे चल के जा रहे थे। अब जब आगे पहुंचे तो अल्लाह की तरफ से आगे दरिया आ गया, कोई रास्ता ही नहीं है, मूसा किधर लेके जाए अपनी कौम को। कौम लग गई उसके पीछे, मूसा अब क्या बनेगा, फिरौन आ गया तो हमें मार डालेगा, तू मरवाने के लिए ले आया था, अब इससे बेहतर था हम ना ही आते, तो वो हमें अपने जुल्म का तशद्दुद का निशाना तो ना बनाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम चूँकि पैगम्बर खुदा, ईमान के पक्के और अल्लाह पे पूरा यकीन और भरोसा था कि अल्लाह कोई रास्ता निकालेगा। अल्लाह ने निकाला ना, कहा मूसा आसा मार दरिया पर आसा मारा तो अल्लाह ने खुश्क रास्ता बना दिया। सुभान अल्लाह, का सारे के सारे यहाँ से गुजर जाओ। अब ये भागे, पहले ही डर रहे थे कि पीछे से फिरौन आ रहा है, मौत नजर आ रही थी ना। वहां से भागे तो पीछे से फिरौन भी पहुंच गया, जब तक कि ये दरिया के मिड में पहुंचे, दरमियान में। अब ये पीछे से आया है तो सोच जरा, दरिया जो दो टुकड़े हुआ है तो वो सच्चे रब की वजह से हुआ है, वो अल्लाह ने उनको इनाम किया है। तो तू एक झूठा रब बन के, तेरे अंदर इतनी पावर है, तू पहले इतना को पानी लेके तो चेक कर ले कि तू इधर इधर कर सकता है कि नहीं, फिर पीछे भाग, अंधा ही हो गया तू, उनके पीछे भाग उठा। तकब्बुर था ना, और वो भी इस सतह पे कि हर काम मेरे लिए मुमकिन है, खुद ब खुद हो जाता है, मैं कर सकता हूँ। अंदर चले गया। जब दरमियान में पहुंचा ना फिरौन, तो उतने में बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम आगे निकल गए थे, ये दरमियान में आया तो अल्लाह ने कहा दरिया को मिल जा दरिया, अब जरा रोक के तो दिखा तू। नहीं रोक सका, दरिया मिल गया, डूबने लगा, मरने लगा। तो कहता है मूसा तेरा रब सच्चा है। अल्लाह ने कहा अब ऐसे नहीं। बाज कहते हैं कि जिब्राइल को अल्लाह ने कहा इसके मुंह में समंदर की मट्टी डाल दे कि ये मुझे सच्चा कह ना सके मरने से पहले, अब इसने बड़े जुल्म किए हैं। हाँ जी मेरी प्यारी बहना अजीज़ा, आज हमारी इस आयत में ज़िक्र मूसा अलैहिस्सलाम का, और मूसा अलैहिस्सलाम का जो ज़िक्र अभी तक मैंने आपको बताया, ये अभी थोड़ा है, अभी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो इसलिए आगे वाली आयत भी इसी हवाले से हम कोशिश करेंगे कि अब साथ साथ देखें क्या सूरत हाल है, उसके करें, साथ साथ करें। आगे वाली आयत पर आए, वक़ाल मूसा, और कहा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़िरौन से, या फ़िरऔनु, ए फ़िरौन, इन्नी, यकीनन मैं, रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन, जहान वालों के रब की जानिब से रसूल बनकर आया हूँ। ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ, मैं रसूल हूँ, मुझे मान लो। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। पर वो कोई बात नहीं सुन रहे, वो कोई बात सुनने के लिए राज़ी नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह कहते हैं नहीं राज़ी तो क्या बिगाड़ोगे, जुल्म तो तुम अपने ऊपर ही करोगे ना, किसी का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हकीकुन अला अल्लाह अक़ूलु अलल्लाह इल्लल हक़, इस बात पर पूरी तरह कायम हूँ कि मैं अल्लाह ताला पर हक़ के सिवा कोई बात न कहूँ। मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं किस बात पर कायम हूँ कि अल्लाह पर हक़ कहूँगा, हक़ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। क़द जिअतुकुम बिबय्यिनह, मैं यकीनन तुम्हारे पास दलाइल के साथ आया हूँ, और दलाइल भी कैसे, किसके, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानिब से। फ़अरसिल माइया बनी इसराइल, मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दे, फ़िरौन से कहा। अब फ़िरौन इस बात पे राज़ी नहीं हो रहा, फ़िरौन इस बात के लिए मानेगा ही नहीं कि मैं तेरे साथ फिर इसराइलियों को भेजूं। आखिरकार उनको खुद प्लान करके भागना पड़ा। कहा इन कुन्त जिअत बिआयतिन फ़अति बिहा इन कुन्त मिनस सादिकीन, फ़िरौन ने कहा अगर तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो वो ले आओ अगर तुम सच्चों में से हो।
अगर तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो दिखाओ मुझे। फिरौन ने कहा, क्या कहता है? अगर तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो वो ले आओ, अगर तुम सच्चों में से हो। फिरौन ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम जो कुछ कह रहे हो मैं इसे सच नहीं समझता, और तुमने जो मुतालबा किया है मैं इसे मान भी नहीं सकता। लिहाजा अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो और तुम्हारे पास कोई निशानी है तो इसे पेश करो ताकि हम इसे देख लें। फिरौन ने मोजज़ात का मुतालबा किया, इसलिए किया था कि ये साबित हो जाए कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम रसूल नहीं और झूठा दावा कर रहे हैं। फिरौन ने ये मुतालबा इसलिए भी किया था कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की हवा निकल जाए, हवा उखड़ जाए, यानी कि ये घबरा जाए। जबकि वो सच्चा पैगंबर था तो ऐसा क्यों होना था? उन्होंने फिर क्या निशानी दिखाई? फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा हिया सुबानुम मुबीन। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी तो वो अचानक ज़ाहिरी अज़दहा बन गया, ज़ाहिरी बढ़ा। फ़अल्क़ा, बस फेंक दी, डाली, असाहु, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी, अपना असा। फ़इज़ा, तो उस वक्त वो लाठी जो थी, सुबानुन, वो सांप बन गई, मुबीन, ज़ाहिरी यानी बड़ा खुला सांप बन गई। फ़नज़ा यदहु, अगला मौजज़ा दिखाया मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन को। वनज़ा, और अपना हाथ निकाला अचानक। फ़इज़ा हिया बैज़ाउ लिन्नाज़िरीन, तो फ़इज़ा, तो वो उस वक्त बैज़ाउ, चमकता हुआ, वाइट नजर आया, लिन्नाज़िरीन, देखने वालों को। अल्लाह ताला ने ये मोजज़े दिए थे मूसा अलैहिस्सलाम को कि जब उन्होंने अपना हाथ ऐसे निकाल के बाहर यूं अपने गिरेबान से यूं निकाल के दिखाया ना, तो एक तो ऐसे आम नॉर्मल हाथ है ना, तो वो नॉर्मल ना रहा, वो चमकता हुआ वाइट, कुछ रोशनी जैसा। पता ही चल रहा था कि ये कोई मोजज़ा है, हम ऐसा नहीं कर सकते आज की क्रीमों से भी नहीं। वो लाइट, वो ब्राइटनेस आ ही नहीं सकती, वो चमक नहीं आ सकती, वो वाइटनेस नहीं आ सकती। ये अल्लाह का मौजज़ा, तो अल्लाह का मुकाबला तो कोई चीज़ कर ही नहीं सकती, ख़ासतौर पर ये मसनूआत कभी भी नहीं। कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर को ये खूबसूरत मौजज़े दिए ताकि फ़िरौन लाजवाब हो जाए। काल अल मलाउ मिन कौमिही, कहा अल मलाउ, सरदारों ने, मिन कौमी फ़िरऔन, फ़िरौन की कौम से, यानी फिरौन की कौम के सरदार बोले, कहने लगे, इन हाज़ा, यकीनन ये काम जो है, लसाहिरुन, ये जादूगर क्या है, अलीम, जो बहुत जानने वाला है। यकीनन ये शख्स जो है ज़रूर बड़ा माहिर जादूगर है। इन हाज़ा, यकीनन ये मूसा, लसाहिरुन अलीम, बड़ा माहिर जादूगर है। हाजा ज़मीर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही है कि मूसा अलैहिस्सलाम बड़ा पहुंचा हुआ जादूगर है, देख लो इसने ये भी कर दिखाया जो कभी नहीं किसी ने किया। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह है जिसे हदायत दे, जिसे ना दे, जिसे हदायत नसीब ही नहीं तो वो ऐसा ही सोचते हैं। उसने फिर भी जादूगर कहा, जैसे मेरे नबी को लोग जादूगर कह रहे हैं, कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर है, दीवाना है, मजनू है। माज़अल्लाह, जिसको अल्लाह ने हदायत नहीं देनी उसे कोई ना कोई ऐब भी नजर आता है। युरीदु, वो चाहता है, अल्लाह चाहता है, अन युखरिजकुम, कि वो निकाले तुमको। युरीदु, वो चाहता है, अन युखरिजकुम, ये कह रहे हैं, कौन चाहता है? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम चाहता है कि वो निकाल दे तुमको, मिन अर्ज़िकुम, तुम्हारी ही ज़मीन से। फमाज़ा तअमुरून, तो क्या हुक्म देते हो तुम क्या कहते हो? युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्ज़िकुम फमाज़ा तअमुरून, वो चाहता है कि तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से निकाल दे, तो तुम इस बारे में क्या कहते हो? ये कौन कह रहा है? इस आयत में कह रहे हैं कि कौम फिरौन के सरदारों ने कम अकल और कम फहम लोगों को खौफज़दा करने के लिए कहा कि सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम इरादा कर रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से ही निकाल दे। अब तुम क्या मशवरा देते हो, इसका क्या करना चाहिए? फिरौन और उसकी कौम को सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम का गलबा नज़र आ रहा था, इसलिए वो किसी भी तदबीर के ज़रिए मूसा अलैहिस्सलाम को रोकना चाहते थे। वो मुमकिन करना चाहते थे कि हम इससे बच जाएं,
اور اللہ سے کوئی بچ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا جا الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا باطل چلا گیا، باطل کو دوڑنا ہی تھا، نسنا ہی تھا، جگہ حق کی ہے۔